सो हम अडॉप्ट करेंगे उस चीज को भी, जो अगर मुझे लगेगी कि दैट इज द गुड थिंग, सो वी कैन अडॉप्ट दैट पार्ट. सो इज इट ओके? Sure. मीन्स या गुड. सो माई स्क्रीन इज विजिबल बेटा? Yes, sir. It's a Okay, black screen, sir. yeah, black screen, okay. Yeah, so now you can see that part, that is the we just studied about the complexity. अभी माइक ऑफ कर लो जिसका ऑन है. complexity of complexity of recursive problem, you can say, we are searching for, and we are studying about the second method, that is the recursive tree method. Recursive or you can say recurrence tree method. Okay, so one example we have done, and now I will take the second example, and with me you will means attempt this question, the second example for this, that this is if the tn recursive relation is like that, tn is given to you 2t n by 2 plus, this time c is not here. In the last examples you just find that is the c here. Here now you are writing n, I am writing n, so n is greater than 1. Okay, now I am saying not t is equal to 1 at t is equal to 2. At t is equal to 2 the condition is 1. Okay, this time base case is given to you at t is equal to 2. This is your base case now. So this is the relation is given to you now. Just find the complexity of this relation. With the help of this relation, just find out the complexity, and you will apply the recurrence tree method. So what is the means of tree method? You will create a tree. Okay, you will create a tree like this, means some nodes will be there. You will create a tree. After that you will find the leaf node. You will find the leaf node, and this leaf node will work as a base case. Okay, as a base case. Is it? Last time हम लोगों ने इस तरीके से देखा था. Is it okay बेटा? Everyone, please reply. You will Yes, find sir. the leaf node by the general way, and after that you will get the base case. So first you will create the tree for this. So what is the means of this problem? You have a problem of the n size. So I am trying to make a tree. You have the problem of n size. You can say, sir, tn. Okay, and this n size problem I will divide this problem into two parts. Okay, on basis of this 2 t n by 2 means we are dividing this problem into two parts. Okay, so you can say, sir, this is one problem of size t n by 2, and this is the size of problem of n by 2 again. But you can say, sir, for doing this thing, okay, you have to do this work done. Okay, this work done and work done. So in the last problem that was C, but in this problem the work done is N. Okay, so you can say at the first stage, when I am taking the size N, the work done is, here I am writing the work done. Work done is N. Here you will say, sir, individually if I will put the value n by 2 here, n by 2 here every time, so the size will be converted to n. Okay, so the size will reduce. So tn work has been done. Okay, tn size with the help of the work done n. Okay, this is the thing. First, after that you will go, sir, if I will again I will go for reduce the size, this thing will be reduced to the 2 size. Okay, so this is n by 2. Again you can say, sir, this will be converted to n by 4, means half. This n will be converted to half n by 2. This will convert it to half of this n by 2 का half क्या होगा? tn by 4. So you can say, sir, tn by 4 यहाँ पे भी हो जाएगा. Is it okay? This tn by 4 यहाँ पे भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सर, tn by 4 एंड सर tn by 4. ये हमारे चार पार्ट में डिवाइड हो गया. ये टी ऊपर लिख गया, थोड़ा सा समझ लेना. इज इट ओके बेटा? क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे अब यहाँ पे इंडिविजुअली वर्क डन देखो. इंडिविजुअली वर्क डन यहाँ पे देखो कितना होगा. मैं कहूँगा एन साइज की प्रॉब्लम थी तो मेरा वर्क डन था एन. ठीक है, जब एन बाई 2 साइज की प्रॉब्लम है तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? तो मैं कह दूंगा मेरा वर्क डन हो रहा होगा एन बाई 2. इज इट ओके? Yes, sir. यहाँ पे भी आपका वर्क डन कितना होगा?
n/2 जो ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ दैट इज द वर्क डन n/2. Here you can say sir the work done will be n/4 for individual node. Here भी n/4 हो जाएगा वर्क डन सर, यहाँ पे भी n/4 वर्क डन हो जाएगा, यहाँ पे भी n/4 वर्क डन हो जाएगा. लास्ट क्लास में मैंने एक चीज और बताई थी, इफ वी विल फाइंड द नोड, कि मैं नोड भी काउंट करते जाऊं. सर यहाँ पे नोड कितने, बताओ आप लोग कितने नोड है बेटा. यहाँ पे आपके एक नोड है tn 1 नोड, यहाँ पे आपके 2 नोड हो गए, यहाँ पे आपके कितने नोड हो गए बेटा, 4 नोड हो गए. Okay, here that is one node. So already I have taken, if you want to find out the work done, you can do one thing, node multiply the individual work done of the node. तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कितना वर्क डन था n, तो टोटल वर्क डन आपका क्या हो गया n मल्टीप्लाई 2, टोटल कितना हो गया n के. हाँ बेटा. सर अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें हर उसमें मतलब लेवल पे एन ही आ जाएगा. हाँ एन ही आ जाएगा, वही आ रहा है, वही अभी मैं करके दिखा रहा हूँ. यहाँ पे देखो वर्क डन कितना आ जाएगा, अगर मैं दोनों को इंडिविजुअली ऐड कर दूं n/2 देन यू विल गेट द n. ओके, बट एक चीज और कर सकता हूँ सर, मैं इंडिविजुअली एक का ले लूँ n/2 ले लूँ, मल्टीप्लाई 2 कर दूं, तब भी सेम चीज आ जाती है, तो सर n आ जाएगा. ओके, सेम चीज कर रहा हूँ, ऐड कर लो या तो इंडिविजुअली ऐड कर लो, इन चारों को ऐड करोगे तब भी वही चीज कहने का तरीका है कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा n/4 मल्टीप्लाई 4 नोड, तो भी आपका कितना आ जाएगा सर n आ जाएगा. अब देखो, अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द लीफ नोड. सर लीफ नोड के लिए मैं क्या करूंगा सर, इसे जनरलाइज करूंगा. तो जनरलाइज करने के लिए इसे डिवाइड करता जाऊंगा. लास्ट आपका नोड क्या जनरेट हो सकता है सर, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जनरलाइज के लिए. ओके, लास्ट आपका नोड क्या हो सकता है सर, मेरा लास्ट नोड हो सकता है कि मैं पहले क्या किया, एन किया, तो मैंने क्या किया n 2^0, उसके बाद 2^1, 2^2 हो गया. 4 को क्या लिख सकते हैं 2^2, उसके बाद 2^3. तो लास्ट नोड जो लीफ नोड होगा सर, आई कैन राइट सर n 2^k. इज इट ओके? ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, लास्ट में कहीं जाके इस तरीके से 2^k हमारा जनरलाइज टर्म हो सकता है. इज इट ओके? प्लीज रिप्लाई. यस सर. अदर स्टूडेंट ऑल्सो रिप्लाई. ये समझ आया क्या कहना चाहता हूँ? गुड, वेरी गुड. तो यहाँ तक आप लोगों की, यहाँ पे भी आपका इस नोड पे भी आके आपका क्या सिचुएशन है बताओ मुझे. यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, वर्क डन कितना हो सकता है. टोटल वर्क डन तो आपको अब समझ आ गया कि हर एक नोड का यहाँ पे n आ रहा है, तो जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे k से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, k नंबर आ चुके हैं. तो आप क्या करोगे सर, n इंटू 2^k मल्टीप्लाई ऑफ k, मीन्स यहाँ पे 2^k से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा, टोटल 2^k आ गया होगा, तो यहाँ पे आपका n जनरेट होके आ रहे होंगे. कुछ इस तरीके की सिचुएशन है. ये टोटल n आपके जनरेट होके आ रहे हैं वर्क डन. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सर, बेस केस हम लोग चेक कर लेते हैं, दैट इज द जनरलाइज लीफ नोड. This is my leaf node. If I just find the leaf node, then I will go for, सर leaf node को base node कह सकता हूँ. तो leaf node आपका क्या कह रहा है कि just try this thing. Okay, so you can see this is your, क्या लिखा था मैंने लास्ट, and 2 की पावर k, and 2 की पावर k is equal to ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ट्राई टू प्लीज टेल मी. यहाँ पे देखो एक चीज और दी हुई है आपको, क्या दिया हुआ है बेटा, कि इस बार t की 2 पर वैल्यू दी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 2 एट द टाइम दिस इज 1. ओके, दिस इज 1 एट द टाइम ऑफ t. लास्ट टाइम पे हमेशा क्या था, t1 पे आपकी वैल्यू 1 मिल रहा था या जो था सम कांस्टेंट, 1 का मतलब ये कांस्टेंट है कुछ. ठीक है, इस टाइम आपको दिया है कि t2 की वैल्यू पे आपको वैल्यू निकालनी है ये. तो देखो, अगर t1 मेरा लास्ट नोड होता, ठीक है, उससे पहले का वैल्यू दिया हुआ है, तो यू कैन सी कि सर मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि सर ऐसा कर लेता हूँ कि इससे पहले वाला नोड क्या होगा, इससे पहले वाला नोड होगा सर n2k-1, n2k-1. इज इट ओके? अगर ये लास्ट नोड है, उससे पहले वाला नोड जो मुझे बेस केस यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है t2 पे, तो मेरे इससे पहले वाला केस क्या होगा सर. इज इट ओके? हेलो, प्लीज रिप्लाई. यस सर. ओके, सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सर इट इज, यू कैन राइट सर t2, ये t2 की वैल्यू है, दिस विल बी इक्वल टू 1. इज इट ओके? क्लियर है? यस सर. ओके, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ ना. इसको अगर आपको निकालना है तो आप ले सकते हो, इधर कर दो n इज इक्वल टू 2k-1
और 2k-1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, चलो ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग log n log 2n इज इक्वल टू k-1, ये आ गया log 2n 2 तो ये तो वैल्यू आपकी कितना हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो आपका वैल्यू k का कितना जनरेट होके आ गया, log 2n + 1। इज इट ओके, इज इट ओके बेटा? यस ठीक है, चलो ये आपने k की वैल्यू जनरेट कर ली, k इज इक्वल टू log 2n + 1। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको 1 दे रखा होगा, मैंने क्वेश्चन में 2 ले लिया है, ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट। ये भी अगर मैंने कर लिया, नाउ आई विल कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन पे मैं जाऊंगा कि मेरा वर्क डन कितना होगा। वर्क डन अगर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ तो वहां से मैं कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर लूंगा। बेस केस को मैंने डील कर लिया है, के की वैल्यू मैंने जनरेट कर ली। नाउ यू कैन सी यहाँ पे अगर सर मैं लेवल काउंट करूं, यहाँ पे आपका 2 की पावर 0 था, यहाँ पे 2 की पावर 1 था। लास्ट आप कहाँ तक गए हो बेटा, कहाँ तक आपकी वैल्यू जनरेट हुई है, 2 की पावर k तक। तो आप कह सकते हो कि सर मैं 2 की पावर 0 मैंने कैलकुलेट किया, 2 की पावर 1 कैलकुलेट किया, 2 की पावर 2 कैलकुलेट किया, और मैं कहाँ तक गया हूँ लास्ट सर, 2 की पावर k तक गया हूँ। इज इट ओके, यहाँ तक गए थे आप लोग? प्लीज रिप्लाई। यस सर ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स आपके कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स मींस टोटल नंबर कितने लिखे हुए हैं यहाँ पे, इस तरीके से अगर आप काउंट करना चाहो। मैंने पहले कितना बेटा, 2 की पावर के टोटल लेवल्स 2 की पावर नहीं, जैसे मैं इसे काउंट कहूँ कि 1 2 3 कितने नंबर लिखे हुए हैं ये, इस तरीके से टोटल नंबर काउंट करना है आपको। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स मतलब टोटल नंबर। तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर काउंट करना स्टार्ट करोगे तो यू कैन से सर 1 से लेके k तक लिखे हुए हैं, तो k हो गए टोटल, और उसमें एक 2 की पावर 0 भी है, तो आपका एक लेवल और हो गया, k+1 लेवल हो गए। इज इट ओके, k+1 लेवल हो गए बेटा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, k+1 लेवल हो गए मींस क्या है कि आपको जो टोटल वर्क डन निकालना है, तो यहाँ पे k+1 लेवल्स हैं, और कितने टाइम ये n को ऐड कर रहे हो, k+1 टाइम n को ऐड कर रहे हो। तो टोटल वर्क डन कितने टाइम हो जाएगा सर, n + n + n + n। टोटल वर्क डन आपका कितना निकल आएगा, tn ही बोल देता हूँ इसे टोटल वर्क डन को। तो ये आपका k+1 टाइम है, k+1 टाइम निकल के आ रहा है। इज इट ओके, क्लियर है? हेलो, यस सर ओके गुड। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो सर, अगर ये इतने टाइम लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि n इंटू k+1 सर। ये जो टोटल इसका समेशन निकल के आएगा सर, इसका समेशन n टाइम, अगर मैं 10 टाइम लिखता तो 10n लिख के आता है, 10n आंसर होता। k+1 टाइम लिख रहा हूँ, देन सर द आंसर विल बी n इंटू k+1। इज इट ओके? नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ द k की वैल्यू आपको पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इन द लास्ट टाइम यू हैव टेकन दिस वैल्यू। सो k इज n log n +1, और +1 पहले से। ओके ये आपका हो गया, कितना हो गया, ये k की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, तो आपका हो गया log n +2। इज इट ओके? ये आपका क्या हो जाएगा, n log n +2n। और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मैंने आप लोगों से क्या सिखाया है कि लोअर ऑर्डर टर्म और कांस्टेंट को क्या कर दो, हटा दो। तो देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, इसमें log n ऐड है, तो मीन्स ये कांस्टेंट, तो ये अब हमारा लोअर ऑर्डर टर्म हो गया। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल बी o n log n। इज इट ओके, क्लियर है बेटा, क्लियर हुआ, यस और नो? यस तो सर फिर से बोल रहा हूँ, देर आर 3 स्टेप्स ओनली। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि जस्ट ट्राई टू मेक ए ट्री। ओके, मेक ए ट्री, और ट्री बनाने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, लीफ नोड। व्हेन यू विल गेट द लीफ नोड, जनरलाइज नोड यू कैन से, देन यू विल गो फॉर द base condition. After getting the base condition you will go for the this work done, total work done, you will go and you will try to find out the total work done, and after getting the total work done just try to find out the complexity. So this is the procedure to find out the complexity by the help of the recursion tree. Is it okay? क्लियर हो गया? और लेवल निकालना भी आपको मैंने सिखा दिया है, कहीं कहीं हमें लेवल्स की जरूरत पड़ेगी, तो यू कैन गो दिस वे। ओके, और मैंने एक फॉर्मूला भी सिखाया आप लोगों को, भूल जाते हो आप लोग, क्या फॉर्मूला है? चलो वो चलो बाद में बात करेंगे, अभी फॉर्मूले पे नहीं आता, आपको नॉर्मल मैंने सिखा दिया, तो यू कैन अटेम्प्ट दिस थिंग। एक क्वेश्चन सेम दे रहा हूं, ठीक है, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं,
Okay, first you will attempt, then I will tell you. TN, so everyone take the copy and paper. So same question दे रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज होगा. Plus n square. I am doing this time n square, and again I am taking this t1 is equal to 1, some constant. This is n is greater than 1 and n is equal to 1, equal to 1 1. Okay, try to find out the complexity of this recurrence relation with the help of recursion tree. First you attempt, then I will tell you how can you attempt this problem. So take 1 and 2 minutes. ट्री आपका कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, वर्क डन कैसे निकालोगे, ट्राई टू फाइंड आउट फर्स्ट, देन आई विल टेल यू. एवरीवन नोटेड दिस क्वेश्चन? नोट कर लिया है? यस सर. टुडे द स्ट्रेंथ, ओके गुड. सो अटेम्प्ट करो. स्ट्रेंथ कितना है आज? 13. वही है, 15 तक पहुंच नहीं रहे. बहुत ही सिचुएशन टफ है मेरे लिए. एवरी टाइम 50% 60% भी नहीं हो पा रहे. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट दिस इज द टफ सिचुएशन फॉर मी. एनीवेज, first attempt the question, then I will tell you. Please reply again and again कि आपको ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट समझ में ना आ रहा हो. प्लीज रिप्लाई. सब्जेक्ट इज ओके, आपको समझ आ रहा है. मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल इतने एग्जाम मैं इस क्वेश्चन को या इस मतलब सब्जेक्ट को बहुत पहले ही खत्म करा चुका होता ये पार्ट, बट मैंने हर एक बार एग्जाम्पल लेके आपको सामने पूरा सॉल्व करके दिखाया है कि आपको एक बार समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है. अदरवाइज मेरे लिए मुझे पीपीटी दिखा के इसको निकालना बहुत आसान था कि जस्ट मैं दिखाता और कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी. जस्ट कैलकुलेशन शो करता और मैं निकाल देता इसको कि तुरंत हो जाता. एक क्लास में मैं एक टॉपिक को खत्म कर सकता था इजीली. मास्टर थ्योरम में 2 दिन का प्लान किया हूँ, जो आपका लोग 15 मिनट में पढ़ा देते हैं. मास्टर थ्योरम इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ. 2 दिन प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक बार समझ में आ जाए. वो सबसे आसान है और आप लोग वहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आसानी से निकालना स्टार्ट कर दोगे. बट प्लीज़ ट्राई, मीन्स अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा. प्लीज़ बेटा, सब लोग मैं समझा रहा हूँ कि अटेम्प्ट करते रहो, मेरे साथ क्लास में भी रहो. तो दैट विल बी ओके फॉर यू, मीन्स गुड फॉर यू और गुड फॉर मी ऑल्सो. यार मेरा मन लगता है अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं. कम रहेंगे तो पढ़ाता तुम वैसे ही हूँ, ठीक है यार, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है टीचर का भी. तो प्लीज़ आप लोग क्लास आया करो. नहीं समझ में आया तो यार बैठा हूँ ना मैं, मुझसे पूछो, कहीं भी पूछते हो मैं कहीं ना कहीं रिप्लाई तो करता हूँ. इग्नोर तो नहीं करता ना आप लोगों को भी. प्लीज आया करो क्लास. एनीवेज, अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया. ट्री बनाया किसी ने? कैसे बनेगा बताओ, हेल्प करो मेरी. वेरी गुड. चलो स्टार्ट किया. कैसे किया होगा स्टार्ट कि आपने लिया होगा TN. ओके सर, एक TN साइज की प्रॉब्लम है, मैं समझाता जाऊँ, सुनते जाना. सर यहाँ से मुझे दिख रहा है कि वो प्रॉब्लम 2 पार्ट में फिर से अटेम्प्ट डिवाइड हो रही है. मीन्स सर मैं कह सकता हूँ कि वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई. सर एक पार्ट हो गया आपका TN/2, TN/2. इज इट ओके? यहाँ तक ठीक है. सेम सर मैं अगर इसको आगे भी डिवाइड करता हूँ तो TN/4 कर लेता हूँ और TN/4 कर लूंगा या TN/2 स्क्वायर कर लूंगा. सर सेम यहाँ पे हो रहा होगा. सर अगर मैं इसी को आगे बढ़ाता जाऊं तो लीफ नोड मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम में करवा चुका हूं. तो सर लीफ नोड में मुझे मिल सकता है कि मैं अगर पावर में देख रहा हूँ कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो सर आई कैन टेक एंड 2 की पावर k. दिस विल बी माई लीफ नोड. इज इट ओके? यू आर विद मी टिल नाउ? अब तो आप ट्री बनाना स्टार्ट हो गए हो, तो मैं पूरा ट्री नहीं बना रहा हूँ. इज इट ओके? क्लियर है? वेरी गुड. चलो यहाँ बताओ कि यहाँ पे आपका वर्क डन कितना था. वर्क डन यहाँ पे सर यहाँ लिखा हुआ है इस बार n स्क्वायर. देन सर आई कैन से द वर्क डन एट दिस लेवल इज n स्क्वायर. इज इट ओके? क्लियर है? यस सर, हर बारी मतलब कैलकुलेट किया मैंने, ऐसे जाएगा n स्क्वायर फिर n स्क्वायर बाई 2 फिर n स्क्वायर बाई 4. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू, इफ यू जस्ट वांट टू चेक एट दिस लेवल, इस इंडिविजुअल लेवल पे आप लोग फाइंड आउट करो कि सर इसका कितना वर्क डन होगा. तो यहाँ पे मैं n की जगह पे n/2 डाल दूंगा, तो वर्क डन कितना निकल के आ जाएगा? n स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर बाई 4. n स्क्वायर बाई 4
इस इंडिविजुअल लेवल का, लेकिन यहाँ पे कितने कितने नोड है, 2 नोड है। तो सर मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर बाई 4, दोनों का सेम है, या फिर दोनों को ऐड कर लो, दोनों का एन स्क्वायर बाई 4 एन स्क्वायर बाई 4 आएगा, दोनों को ऐड कर सकते हो। बट मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ आप लोगों को, दो है, एक का निकाल लो, अगर बैलेंस है दोनों में सेम निकल रहा है वर्क डन, तो एन स्क्वायर बाई 4 आया, तो यहाँ से आपका वर्क डन कितना निकल के आ गया, एन स्क्वायर बाई 2 से ये 2 बाई डिवाइड हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई 2 आंसर आ जाएगा। इज इट ओके, क्लियर है बेटा? yes, नेक्स्ट टाइम का क्या निकल के आएगा सर, एक का निकाल लेता हूँ, एन स्क्वायर बाई 4 रखूंगा, तो एन स्क्वायर बाई 4 रखूंगा तो सर कितना आ जाएगा यहाँ पे, सर n square by 4 एन स्क्वायर बाई ये कितना कर दूंगा, 16 आ जाएगा। 16 ओके, तो n square हाँ, by तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, 4 नोड बन रहा है, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एन स्क्वायर बाई 16 का, देन द नोड विल बी एन स्क्वायर बाई 4। इज इट ओके? तो yes, सर इस तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है, आगे इस तरीके से बढ़ता जाऊंगा। चलो लास्ट नोड पे मैं देखता हूँ, मैंने मान लिया है सर के नोड तक मैं जाने वाला हूँ, के नोड तक जाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा लेवल काउंट कर लूंगा सर, यहाँ से यहाँ तक के लेवल कितने होंगे, तो वैसा ये लेवल सर 0 से स्टार्ट हुआ है, के तक गया है, तो टोटल लेवल कितने हो जाएंगे सर, के प्लस k 1, plus 1 के प्लस 1 लेवल्स हो जाएंगे सर। इज सर इट ओके? इसमें मैं बताऊं वर्क डन n square by 2k into k plus 1 हाँ, कुछ इस तरीके का। चलो वो लास्ट वाला वर्कडन अभी छोड़ देते हैं, चलो देखेंगे क्या ऐसा कुछ निकल के आएगा, 2 की पावर के, लास्ट में अगर इस तरीके से लेना चाहते हो, 2 की पावर के हो जाएगा इधर, और इधर हो सकता है, चलो अभी देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ तक आपको इतना समझ आ गया क्वेश्चन का, इतना पार्ट समझ आ गया, क्लियर है? yes sir ओके, वेरी गुड। तो चलो फर्स्ट इसको पहले डील कर लेते हैं कि सर हमारा लीफ नोड हमारा जो निकल के आया, वो तो सेम आपका सभी में सेम निकल के आ रहा है, तो मैंने एन 2 की पावर के इज इक्वल टू 1 ले लेना है, क्योंकि बेस हम लोग यही लेके चले हैं क्वेश्चन में। इज इट ओके? बेस हम लोग यही लेके चले थे, तो 1 ले लिया। तो यहाँ से आपको पता है कि के इज इक्वल टू क्या निकल के आता है, लॉग 2n। इसको मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, के की वैल्यू हमने जनरेट कर ली। अब सर मुझे टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करना है। सब बच्चों की समझ आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है ना बेटा? ये कैसे निकाला सबको पता है, कैसे लॉग लेते हैं और ये पार्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? जल्दी बोलो। yes sir वेरी गुड। चलो टोटल वर्क डन के लिए मैं क्या करूंगा सर, जो भी वर्क डन आपका निकला हुआ है लगातार सबको ऐड कर लो। तो हमारा पहला वर्क डन कितना था सर, एन स्क्वायर था। फिर दूसरा वर्क डन हमारा कितना निकला, एन स्क्वायर बाई 2 निकला सर, एन स्क्वायर बाई 2 निकल आया सर। थर्ड वर्क डन हमारा कितना निकला सर, एन स्क्वायर बाई 4 निकल आया, मीन्स यू कैन से सर 2 स्क्वायर। अगला क्या निकल आएगा सर, एन स्क्वायर बाई 2 क्यूब निकल आएगा सर। इस तरीके से अगर मैं के लेवल तक चला जाऊं तो क्या होगा, एन स्क्वायर बाई 2 के। k इस तरीके से हमारा वर्क डन निकल के आ जाएगा, ये हमारा वर्क डन निकल सकता है। नाउ यू कैन से सर, इसमें से अगर मैं टोटल वर्क डन अभी एस मान लेता हूँ, टोटल वर्क डन हम एन स्क्वायर को कॉमन ले लें, ठीक है, कॉमन ले लिया सर। कॉमन लेने के बाद मैं देखूंगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस डॉट 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 सर, ये जा रहा है आपके 2 की पावर के तक, 2 की पावर के तक जा रहा है। इज इट ओके बेटा, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। yes sir वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका हमें सम निकालना है बस सर, एन स्क्वायर तो लिखा हुआ है, इसका सम क्या होता है, इसका sir सम अगर निकालना है, एन स्क्वायर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, सर जीपी लिखी हुई है, ठीक है। इसका सम हमने कई जगह देखा है, बट फिर से मैं बता दूं कि हम लोग कह सकते हैं कि, क्या कोई बताएगा मुझे क्या होता है, सर आपने ए लॉग वन, हाँ, लॉग इस, की बताया था इसका नहीं वो इसका लॉग के नहीं आया, इसका इसका बताया था लॉग के 1/2, नहीं नहीं सही इसका नहीं, नहीं आ रहा बट नहीं नहीं ऐसे ही था नहीं नहीं, वहाँ पे 1 बाई इस तरीके का नहीं था, इसका इसका जीपी से चलो अटेम्प्ट करते हैं, जीपी से निकालने 1/r(n+1), ठीक है, और 1/r, इस तरीके का फॉर्मूला होता है। ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, आर इनका डिवीजन करोगे अगर 1/2 नेक्स्ट वैल्यू में से अपॉन 1 वैल्यू, मीन्स पिछली वैल्यू को, या फिर ऐसे कर सकते हो 1/2 स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2। तो इसका भी आंसर 1/2 आएगा, इसका भी आंसर 1/2 आएगा, ठीक है। आर का मीन्स होता है कि अगर लास्ट वैल्यू को, मतलब आगे वाली वैल्यू से पिछली वाली वैल्यू को डिवाइड करूं तो कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, और ये सबकी इक्वल है देखो,
सबका 1/2 क्योंकि हम मल्टीप्लाई करता जाऊँ 1/2 का हर एक एलिमेंट पे, तो नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलती जा रही है। इसका मतलब ये होता है। इज इट ओके? तो देखो अगर मैं इसको फाइंड आउट करूं तो दैट इज द फॉर्मूला, एंड इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी सर, s इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसका पहले का एलिमेंट क्या है, 1 है, a 1 के इक्वल है, 1 माइनस आर हमारा 1/2 के इक्वल है, और अभी यहाँ पे k n की जगह k ले सकते हो। यहाँ जब n एलिमेंट होते हैं तब हम n लेते हैं, जब k एलिमेंट है तो k प्लस 1 कर दे रहे हैं, k प्लस 1। ओके, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस आर 1/2। ओके, तो नीचे हमारा यहाँ से मिल जाएगा 1/2, और यहाँ एन स्क्वायर, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कर दो या मत कर दो कोई फर्क नहीं, 1/2 की पावर आपका हो जाएगा log 2n प्लस 1। वहाँ पे मैं वैल्यू को रख दे रहा हूँ। इज इट ओके? ठीक है यहाँ तक बेटा? या फिर देखो इस टर्म को अगर आप सॉल्व करना चाहें इस तरीके से भी कर सकते हैं। अदर एक और तरीका है, इनफाइनाइट वैल्यू का समेशन ले सकते हो। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। देखो यहाँ पे देखो 1/2 को अगर मैं 0.5 कर दूं, 0.5 की log 2n, ओके, n की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं इस 0.5 में, हमें हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा इस टर्म से। मुझे बताओ, n की कोई भी वैल्यू ले लो यहाँ से तो हमें कांस्टेंट मिलने वाला है, और ये हमारा कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट हमेशा हमेशा कितना, 1 से कम रहने वाला है। ऑलवेज अगर ग्राफ बनाओगे तो दिस दिस विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर ले लो, 2n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 माइनस सम कांस्टेंट, मैं कांस्टेंट लिख दे रहा हूँ, सम कांस्टेंट। और मैंने आपको क्या बताया है, जब भी आप कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट, हमें एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी मैं कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर रहा हूँ तो आई कैन से सर s इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को हमें हटाना है, मीन्स अगर tn में कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है tn के टर्म में, तो आई कैन से सर दैट विल बी, कांस्टेंट टर्म को हटा दो, दोनों कांस्टेंट टर्म में हटा दिया सर, इस कांस्टेंट को हटा दो, दैट विल बी on स्क्वायर टाइप। ओके, तो लास्ट में एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन करना होता है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। अगर मुझे एक्चुअल निकालनी होती तो मैं लॉग की वैल्यू रख देता और यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करता, बट यहाँ से आप देख सकते हो इस 1/2 के ऊपर लॉग है केवल, एंड कुछ भी वैल्यू हो जाए यू विल गेट द कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम रिटन द कांस्टेंट हियर। सो दिस विल बी on स्क्वायर टाइप, मीन्स आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट n स्क्वायर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विल बी देयर। इज इट ओके? क्लियर हुआ बेटा थोड़ा सा आइडिया? यस सर। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, बट यू कैन अटेम्प्ट। अगर एक बार देख लोगे, ये वाला फॉर्मूला देख लेना आप लोग, जीपी का फॉर्मूला देखना कि जीपी को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैं टास्क दे रहा हूँ, आप लोग इसको देखना, जीपी एपी, ठीक है, इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। और एपी जीपी तीसरा भी होता है शायद, क्या बोलते हैं, एचपी, हार्मोनिक बोल देते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक बार छोटे से वीडियोस कहीं भी मिल जाएंगे, तो यू कैन गो एंड चेक दैट पार्ट। ओके, तो इसको अटेम्प्ट करके आप लोग ये समझ सकते हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है। इज इट ओके? क्लियर हुआ बेटा? क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो बेसिकली आपको जो फंडा यस सर, सिखाने, ये तो जीपी था ना सर, ये तो। हाँ ये जीपी था बेटा। ठीक है, एक बार फॉर्मूला देख लेना, यहाँ पे मैं कांस्टेंट वगैरह कर लिया, तो जीपी को सॉल्व करना और एपी को, ये पार्ट आप देख लेना थोड़ा कैलकुलेशन का। ओके, देन ओके, नाउ अब देखो मैंने आपको दो तरीके सिखा चुके हैं। फर्स्ट इटरेटिव मेथड, आपको बैक सब्स्टिट्यूशन कह सकते हो, एक बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ओके, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पे हम पर्टिकुलर वैल्यूज को क्या करते थे, लास्ट वाली वैल्यूज से अटेम्प्ट करते रहते थे, तो लास्ट तक अटेम्प्ट करते थे, एक जनरलाइज फॉर्मूला ढूंढते थे। आफ्टर दैट वी पुट द बेस केस एंड कैलकुलेशन करते थे। यहाँ पे क्या करते हैं, ट्री बनाते हैं, ट्री में जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, लीफ नोड को ढूंढते हैं, लीफ नोड अगर मिल जाता है उसके बाद हम वर्क डन निकाल लेते हैं, और वर्क डन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। दो तरीके आपको मैंने सिखा दिए। नाउ द थर्ड वे इज द मास्टर्स थ्योरम, और ये सबसे इजी है, मैं चलो यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। बट मास्टर्स थ्योरम के बारे में बता दूं, मास्टर्स थ्योरम इज नॉट द यूनिवर्सल थ्योरम, नॉट यूनिवर्सल थ्योरम। इसमें बस एक कंडीशन है, नॉट यूनिवर्सल। आप हर तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जनरेट कर सकते, मींस आपके पास पर्टिकुलर टाइप का एक सिचुएशन होनी चाहिए, या एक मींस ये कह सकते हो कि टेम्पलेट होगा। अगर इस तरीके के टेम्पलेट में अगर आपकी क्वेश्चन पूछा गया है, देन यू कैन अटेम्प्ट, अदरवाइज यू कांट अटेम्प्ट द प्रॉब्लम विद दिस मेथड। और वो
एक्चुअली पर्टिकुलर टाइप क्या है, वो पर्टिकुलर टाइप क्या है, तो मैं इस टाइप को यहाँ पे पहले आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द टाइप टू फाइंड आउट। और इसको हम नॉर्मल मास्टर्स थ्योरम कहते हैं, लेकिन ये भी आपका जो मैं सिखा रहा हूँ दैट इज द एक्सटेंडेड मास्टर्स थ्योरम। okay, that is the extended master's theorem. okay, here you will find extended master's theorem का पर्टिकुलर जो आपका एक फॉर्मेट है और पर्टिकुलर टाइप है वो क्या है, उसको पहले लिखता हूँ। पर्टिकुलर टाइप, ये सबसे आसान है, केवल हमें चेक करना होता है कि ये पर्टिकुलर टाइप में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है नहीं। आफ्टर दैट जस्ट यू विल कैलकुलेट, वो मैं तरीके बता दूंगा, 3 तरीके होते हैं, तो यू विल फाइंड। सो पर्टिकुलर टाइप है दैट इज टी एन इज गिवन टू यू, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ए टी एन बाई बी, जस्ट मैं एक शायद मेरा एक कोरियर आने वाला था तो कॉल आ रहा है लगातार, जस्ट 1 सेकंड दो मुझे, आई एम कमिंग बैक। okay, sorry, I'm coming back, just okay. So that is a t n by b plus ये this is the form theta, and you can say sir this is n to the power k some log n to the power p। अभी देखने में भयानक लगेगा बट ये बहुत ही आसान है, डोंट वरी फॉर दैट, एक एक करके मैं समझाऊंगा टर्म क्या है, सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। सो वन थिंग इज देयर सर, a शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, b आपका डिनोमिनेटर में, तो आप यू कैन से सर b शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज सॉरी k आपकी पावर में गया है तो एटलीस्ट k को भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑल द थिंग्स जो भी आपके नए वेरिएबल आपने देखे दैट a b एंड k दैट शुड बी ग्रेटर देन, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे एक p और है एंड p शुड बी एनी रियल नंबर, ये आपका माइनस में हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग एनी रियल नंबर। ओके, वन बाई वन वी विल सी क्या लिखा हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे अभी देखो एक एग्जांपल आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। अभी आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ रहे थे कि सर हम लोग ऐसे पढ़ते थे टी एन बाई टू प्लस सम सी। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बोलता था, जस्ट रिमेंबर द थिंग, मैं बोलता था कि एक प्रॉब्लम को, एक एन साइज की प्रॉब्लम को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया है सर, आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और हर एक प्रॉब्लम का जो डिवाइड हुई है उसका साइज क्या है सर, n/2 साइज है उसका, यही तो बोलता था, यस और नो, प्लीज रिप्लाई, जल्दी बताओ। यस सर। ओके, तो प्लीज रिमेंबर ए आपका क्या हो जाएगा, दैट ए शुड बी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के हाउ मेनी टाइप, कितने बार आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर रहे हो। नाउ जस्ट गो फॉर दिस थिंग बी आपका यहाँ पे क्या दे, n/2 करता हूँ, n/4 कर दूं, n/8 कर दूं, तो आप कहते थे सर इतने साइज में डिवाइड कर रहा हूँ, मीन्स n/2, इधर तो वही लिखा है ना 2, अगर इससे कंपैरिजन करोगे कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है 2t n/2, तो b कितना हो जाएगा यहाँ पे, b इज 2 हियर, इज इट ओके बेटा, b इज 2, तो b आपका क्या बता रहा है, साइज ऑफ द प्रॉब्लम, मीन्स आप प्रॉब्लम का साइज कितना रिड्यूस कर रहे हो। तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आप किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जहां पे आपकी साइज सर डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 8, इस टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन यूज द मास्टर्स थ्योरम। ओके, अदरवाइज n-1 टाइप की प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को इससे सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपके पास एक ही मंत्र है, दैट यू विल यूज द बैक सब्सटीट्यूशन मेथड। तो ये दोनों पार्ट समझ आ गए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर बी और ए, इज इट क्लियर, हेलो, यस सर।
वेरी गुड. और रिमेंबर दिस साइज ऑफ प्रॉब्लम, एवरी टाइम दिस साइज ऑफ प्रॉब्लम विल रिड्यूस. दैट्स वाई वी आर सेइंग सर बी शुड बी ग्रेटर देन 1. देखो बी अपॉन में लिखा हुआ है, अगर एन साइज की प्रॉब्लम है, अगर 1 के इक्वल रख दोगे तो ये इसका कोई फायदा नहीं हुआ. तो बी शुड बी ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया सर, कि अगर 1 से बड़ी है, मान लो मैं 2 रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, कुछ भी रख देता हूँ, तो आपका साइज क्या होगा, एवरी टाइम साइज विल बी रिड्यूस. दैट्स वाई आई एम सेइंग सर बी विल बी ग्रेटर देन 1. बी की वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब क्यों यहाँ पे ग्रेटर लिखा, क्यों मीन्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये वाली चीज़ें, तो ये क्लियर आपको हो जानी चाहिए. इज इट ओके? ठीक है, यहाँ तक ठीक हो, मेरे साथ हो आप लोग? क्लियर हो गया? यस सर. ओके. अब देखो यहाँ पे k वैल्यू जो है k इज, अब k यहाँ पे अभी समझना, अभी तो मैं एक एग्जांपल लूंगा उसके हिसाब से. अभी मैं एक एग्जांपल लेता था, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल लिया सर, t n/2 आपने लिखा था, उसके बाद आपने n लिख दिया था. एक प्रॉब्लम में n लिखा था और अगली प्रॉब्लम में यहाँ पे n स्क्वायर कर दिया था, इसी प्रॉब्लम को t n/2 प्लस n स्क्वायर. इज इट? यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम आपने जनरेट की थी. अब ये हमेशा याद रखना, दिस इज द इंक्रीजिंग थिंग, मींस k विल टेक एनी वैल्यू. यहाँ पे k एक्चुअली क्या है, n की पावर है. n की पावर आपकी कितना भी हो सकता है. ओके, एनी वैल्यू इट विल टेक ग्रेटर देन द 0. ओके, तो k की पावर आपकी कुछ भी हो सकती है. ओके, तो k को अभी डिफाइन नहीं करते, केवल आपको n, अगर n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू. ये कितना आ जाएगा? 1. 1. और यहाँ पे हम 1 को मोस्टली क्या बोल रहे हैं पूरे टाइम पे, दैट इज द कांस्टेंट. ओके, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट भी अगर आपका c भी आ जाता है तो यू कैन से सर, अगर इस तरीके का लिखा हुआ है 2 प्लस c, तो वी कैन से n इज पावर, n इज 0. k की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ c लिखा हुआ है, मीन्स कांस्टेंट है. इज इट ओके? याद रहेगा यहाँ पे n इज 0 मीन्स सर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आएगा. अगर 1 लिखा हुआ है तभी भी वो वैल्यू होगी, c लिखा हुआ है तभी भी वो वैल्यू होगी. इज इट ओके? ये चीजें समझ आ रही हैं सभी को? एक बार समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. क्लियर? यस सर. ठीक, वेरी गुड. अगला एक क्वेश्चन आपको याद होगा, एक क्वेश्चन मैंने लिया था, मैं इसको भी रब कर देता हूँ. एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप का लिया था, चलो मैं बना देता हूँ नया क्वेश्चन. टी एन इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस n log n. इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ भी कुछ चेंज थी वैल्यू. तो यहाँ मुझे बताओ k की वैल्यू कितने है, अगर इससे कंपैरिजन करो. अब मुझे आप लोग बताओगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कितनी है और p की वैल्यू कितनी है. जल्दी से बताओ. सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. एक वैल्यू 2 है. और भी स्टूडेंट बताओ, केवल एक स्टूडेंट नहीं बताएगा. आपने एक बता दिया, अभी आप चुप रहोगे, बाकी लोग बताएंगे. ओके, b की वैल्यू बताओ. एनी अदर स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? हेलो, नो वन इज इंटरेक्टिंग यार, व्हाट इज गोइंग ऑन? हेलो. हेलो. हाँ बेटा, b की वैल्यू बताओ. एक सेकंड. अगर आपके पास माइक काम नहीं कर रहा है, इज इट ओके, यू कैन राइट ऑन द चैट ऑल्सो. तो यू कैन राइट ऑन द चैट, अदर सब स्टूडेंट प्लीज राइट ऑन द चैट. हाँ, b थोड़ा की वैल्यू इशू कर कितना होना देता है. चाहिए? हाँ बेटा, क्या हुआ? सब बी की भी 2 ही होगी. 2 होगी, वेरी गुड. b की भी 2 है, देखो यहाँ पे 2 है, तो यू कैन कंपैरिजन, जस्ट कंपैरिजन. उसके बाद भी आप आंसर नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो भाई. आप बताओ k की वैल्यू कितनी होगी, कोई और 1. स्टूडेंट बताएगा तो मत बताओ. अच्छा. मोहम्मद, हाँ सैयद, मत बताओ तुम. अदर स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई. कुशाग, प्रणव, ईशा, सीबत, कोई तो बोलो यार. इस तरीके से कैसे, मैं पता नहीं पढ़ा भी किसको रहा हूँ, आई डोंट नो कि मैं, मतलब आप सुन रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे हैं. एनीवेज, नहीं तो फिर मैं ऐसा ही करूंगा, जैसे अब मेरा भी मन हट गया, मैं आपको पीपीटी लेके आऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा और निकल जाऊंगा यार. मेरा भी इसी तरीके से, जैसे आप अगर सुनने के मूड में नहीं बैठे हुए, एक दो बच्चे सुन रहे हैं केवल. ठीक है, आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा. मेरे पास से पता है, मेरे पास, आपको अगर मैं, आपको लगता होगा कि मेरे पास पीपीटीज नहीं है, ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ पूरे सब्जेक्ट का. मैं पहले से ही मेरे पास मटेरियल है, लास्ट टाइम हम लोगों ने लिया था. और देखो आप इस सब्जेक्ट का, इसको भी दिखा दूँ मैं, कि मास्टर्स थ्योरम मेरे पास रखा हुआ है. ठीक है, मैं पीपीटी दिखा के भी आप लोगों को निकाल सकता था.
जस्ट वेट। ठीक, ये है पीपीटी। ठीक है, आपको सीधा फॉर्मूला दिखा था, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, यू कैन कंपेरिजन दैट फॉर्मूला एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट द आंसर्स। ठीक है, इसमें कुछ कुछ बता देता और आपको समझ आ जाता, वॉट एवर समझ आता या नहीं आता जो भी है। मैं इस तरीके से भी पढ़ा सकता हूँ, मटेरियल है मेरे पास, और आपको अटेम्प्ट करना होता सीधा आंसर क्वेश्चन दे देता कि दिस द स्पेशल केस, दिस द केस और दिस द आंसर। इस तरीके से भी मैं पढ़ा सकता हूँ, बट आई डोंट नो, मैं अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो